Good morning, everyone. This is your Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So today in English grammar we will do worksheet 6. Okay. So first of all, what you all have to do, you all have to mention today's date in your copies, that is 25 July 2020. You all have to mention online classwork in your copies, and with that you all have to mention lesson 11 in your copies, and the name of the lesson is the past tense. So one thing which I have to say, that these things are mandatory to mention in the copies when you are starting your work. So if these headings will not be there, then the work would not be checked by me. Remember one thing. So let's come back on today's worksheet, that is lesson 11, the past tense. So in yesterday's worksheet we have done the definitions and some exercises of the past tense. In today's worksheet we will do some exercises and translations that will be related to past tense only. So first of all, let's see our first exercise, that is exercise 3 of this lesson, and that is change the tense of the given sentences as directed in the brackets. क्या करना है आपको, इन sentences के tense change करना है जैसा कि bracket में बताया गया है. So your first sentence is he was eating his tiffin in the school. वो स्कूल में अपना टिफिन खा रहा था. So was eating is the helping verb and main verb of continuous tense. So it is past continuous, हमको change करना है simple past में. So हम simple past का helping verb लगाएंगे and main verb लगाएंगे. So in simple past tense, no helping verb is there, only second form of verb will be used. So it will be he ate his tiffin in the school. क्या किया? eat का ate कर दिया, उसने स्कूल में अपना टिफिन खाया. Our next sentence is I was driving to work when I crashed my car. मैं ड्राइव करके अपने काम पर जा रहा था जब मेरी कार क्रैश्ड मीन्स होता है टकराना, टकरा गई. सो वी हैव टू चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस. सो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब लगाएंगे. इट विल बी आई हैड ड्राइव इन टू वर्क when I crashed my car. So had is the helping verb and drive in is the past participle form of verb only. So I had drive in to work when I crashed my car. So next sentence is they had eaten mangoes. उन्होंने मैंगोज यानी आम जो थे वो खा लिए थे. सो वी हैव टू चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूस. हमारा हो जाएगा दे वर ईटिंग मैंगोज, वे आम खा रहे थे. फोर्थ सेंटेंस इज द एलियंस हैड विजिटेड अर्थ फॉर अ सेंचुरी बिफोर पीपल केम टू नो ऑफ देयर एग्जिस्टेंस. जो एलियंस थे वो एक पूरी शताब्दी से, एक सेंचुरी से जो पृथ्वी पर आ रहे थे, लेकिन लोगों ने उनका जो एग्जिस्टेंस है, उनके पाए जाने, उनके होने का जो मतलब न्यूज़ है, उसका उन्हें बाद में पता चला. So we have to change it into past perfect continuous tense. So let's see. So the sentence will be the aliens had been visiting earth for a century before people came to know of their existence. लोगों को जब उनकी existence के बारे में, उनके होने के बारे में बाद में पता चला, उससे पहले ही जो aliens थे वो पृथ्वी पर visit करते रहे हैं. Okay, next sentence is did you work on the project? क्या तुमने प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया? Did is the helping verb of past indefinite tense, so it is a negative sentence of past indefinite. हमको change करना है past perfect में. So the answer will be had you worked on the project. Had is the helping verb of past perfect and third form we had used. That will be had you worked on the project. क्या तुमने अपने प्रोजेक्ट पर काम किया? So next our topic is translations. So in translations today we will do the sentences that will be related to past tense only. So first, which form is there of the tense? That is past indefinite tense. So how can you recognize past indefinite tense? Let's see. So वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आया, गया, किया आदि शब्द जो हैं वो आते हैं. So when you are reading a sentence in Hindi, if it is written मैं खाना खाता था, वह मेरे घर आया, हमने गाना गाया. So these type of sentences, if in the last, if you are getting these type of words ता था, ती थी, ते थे, आया, गया, किया, so वो आपका किस में आता है? पास्ट इंडेफिनिट में आता है. So let's see the formulas of past indefinite tense. सबसे पहले हम देखते हैं affirmative का. So it will be subject plus second form of verb plus object. No helping verb will be there, only second form of verb will be there. Then negative, subject, helping verb is did. Did will be used with all the subjects, only one helping verb is there. Obviously it is negative sentence, that's why we will use not. Then first form of verb plus object plus full stop. Next is interrogative sentence. So it is interrogative, so we will start with the helping verb, that is did, subject, verb first form plus object plus question mark.
नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, मीन्स इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव का दोनों का मिक्सचर. सो इफ क्वेश्चन वर्ड इज देयर, सो वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन वर्ड. क्वेश्चन वर्ड मीन्स क्या, क्यों, कहाँ, कैसे. देन डिड आएगा हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क. So to understand these formulas well, let's see the examples of past indefinite tense. So our first sentence is उसने मेहमानों के लिए चाय तैयार नहीं की. उसने means the subject is not clear, so we can write he or she also, but it is related to cooking, that's why I have written she. So she नहीं की, that means it is negative sentence. Did not, तैयार की, prepare first form of verb, क्या तैयार नहीं की, tea for the guest. She did not prepare tea for the guest. नेक्स्ट सेंटेंस इज प्रधानाचार्य ने प्रश्न पत्र में कई प्रकार के बदलाव किए. सो हु इज द सब्जेक्ट? द सब्जेक्ट इज प्रधानाचार्य बिकॉज शी इज मेकिंग द चेंजेस. द प्रिंसिपल क्या किया? बदलाव किए. मेड मैनी टाइप्स ऑफ चेंजेस. किसमें चेंजेस किए? इन द क्वेश्चन पेपर. दैट विल बी ऑब्जेक्ट. सो योर सेंटेंस विल बी द प्रिंसिपल मेड मैनी टाइप्स ऑफ चेंजेस इन द क्वेश्चन पेपर. नेक्स्ट सेंटेंसेस कक्षा के कुछ विद्यार्थी नियमों को क्यों तोड़ते थे. सो हेयर क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड. सो क्यों इज गिवन, सो दैट्स वाई हम सबसे पहले इसकी इंग्लिश लगाएंगे. दैट विल बी वाई, देन हमारा हेल्पिंग वर्ब, देन हमारा सब्जेक्ट. व्हाट इज द सब्जेक्ट? कक्षा के कुछ विद्यार्थी, बिकॉज नियम कौन तोड़ रहा है? कक्षा के कुछ विद्यार्थी. सो इट विल बी सम स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास. क्या कर रहे थे? ब्रेक रूल्स. सो योर सेंटेंस विल बी Why did some students of the class break rules? नेक्स्ट सेंटेंस है सरकार ने कुछ नए नियम लागू क्यों नहीं किए. सो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों इज गिवन, तो सबसे पहले हम उसका क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगाएंगे. दैट इज वाई. देन हेल्पिंग वर्ब डिड. व्हाट इज द सब्जेक्ट? लागू कौन नहीं कर रहा है? द गवर्नमेंट. सो इट विल बी द गवर्नमेंट. नेगेटिव है, देन नॉट आ जाएगा आपका. देन क्या नहीं किया? लागू इज द मेन वर्ब. सो इम्प्लीमेंट वी से. इम्प्लीमेंट क्या नहीं किया? सम न्यू रूल्स. सो योर सेंटेंस विल बी why did the government not implement some new rules. So that was about past indefinite tense. Let's see the next topic, that is past continuous tense. As by the name only it is visible to everyone that continue means होता है जारी रहना है, and past means भूतकाल, means आपके बीते हुए समय में जो भी क्रिया जारी है, that is past continuous tense. How can you recognize? So let's see the पहचान. Here it is written वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं. Like मैं खाना खा रहा था, तुम मेरे घर आ रहे थे, हम गाना गा रहे थे. So these type of sentences will come in past continuous tense. So let's see the formulas. First of all, first formula is of affirmative sentence. It will be subject because हमारा helping verb was were होता है according to the subject. Then verb first form plus ing plus object plus full stop. Next is negative. Here it is written subject was were not verb first form plus ing plus object. Only in negative your not will become after your helping verb. Next is interrogative. So interrogative, so that means it will start with the helping verb. So was were, subject, verb first form plus ing plus object plus question mark. Next is interrogative plus negative, which is a mixture of question and negativity also. So that means your work is not, your verb is not happening. So question word if it is given, then was were according to the subject, subject, not, verb first form plus ing plus object plus question mark. So to understand these formulas well, let's see the examples. First it is written मैं अपनी यूनिफॉर्म पर इस्त्री कब कर रहा था. Means it is interrogative sentence because question it is here question is being asked. So कब, सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लगाएंगे. that is when. हमारा सब्जेक्ट है I, उसके अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया was. Then I. When was I ironing my uniform? Iron means होता है प्रेस करना, एंड आयरनिंग ing लगा दिया तो वो हो गया आपका आयरनिंग. नेक्स्ट है कल एक बूढ़ा व्यक्ति सड़क के किनारे वृक्षारोपण कर रहा था. सो कल येस्टरडे कौन कर रहा था वृक्षारोपण? एक बूढ़ा व्यक्ति. सो एन ओल्ड मैन इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट्स वाई हमने यूज किया वॉज. क्या कर रहा था? वृक्षारोपण. सो प्लांटिंग, क्या प्लांट कर रहा था? क्या प्लांट कर रहा था? पेड़. प्लांटिंग द ट्रीज कहाँ पर कर रहा था? एट द कॉर्नर ऑफ द रोड. सो योर सेंटेंस विल बी yesterday an old man was planting the trees at the corner of the road. नेक्स्ट सेंटेंसेस क्या मेरे पिताजी स्कूटर की मरम्मत नहीं कर रहे थे? सो क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड विद नेगेटिव सेंटेंस. इट इज
सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, बिकॉज क्या इज गिवन इन द स्टार्टिंग, वी विल नॉट यूज द इंग्लिश ऑफ क्या, हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। हमारा सब्जेक्ट है मेरे पिताजी, मीन्स माई फादर। सो माई फादर के साथ हमारा वॉज आ जाएगा, वॉज माई फादर। माई फादर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वॉज लगाया, वॉज माई फादर नॉट, मरम्मत करना रिपेयर, रिपेयर प्लस आई एन जी, रिपेयरिंग। वॉज माई फादर नॉट रिपेयरिंग द स्कूटर, क्या मेरे पिताजी स्कूटर की मरम्मत नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट इज कल रात से लगातार बारिश नहीं हो रही थी। सो इट इज नेगेटिव सेंटेंस बिकॉज नहीं इज गिवन। सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेदर एंड टाइम, तो हम क्या करते हैं, इट से स्टार्ट करते हैं। इट हमारा सिंगुलर होता है, सो वॉज आ जाएगा। इट वॉज नॉट रेनिंग, रेन मीन्स होता है बारिश होना। इट वॉज नॉट रेनिंग कंटिन्यूसली मीन्स लगातार। इट वॉज नॉट रेनिंग कंटिन्यूसली सिंस लास्ट नाइट, कल रात से लगातार बारिश नहीं हो रही थी। आर नेक्स्ट टॉपिक इज पास्ट परफेक्ट टेंस। सो व्हाट हैपन इन पास्ट परफेक्ट टेंस, टू एक्शंस हैपन टुगेदर, एक साथ दो एक्शन होते हैं, लेकिन जो एक्शन आपका पहले कंप्लीट होता है दैट विल बी इन पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो बाद में कंप्लीट हो रहा है वो आपका होगा सिंपल पास्ट टेंस में। सो पहचान क्या रहती है इसकी, वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, किया था, आया था, गया था आदि शब्द आते हैं। कौन से आते हैं, लाइक मैं खाना खा चुका था, वह मेरे घर आया था, वह स्कूल नहीं गया था। सो दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस विल कम इन पास्ट परफेक्ट टेंस। सो लेट्स सी द फॉर्मूलाज ऑफ past perfect tense. First is of affirmative, that is subject plus had plus verb third form plus object plus full stop. Then negative, subject had not verb third form plus object plus full stop. Then interrogative, had subject verb third form plus object plus question mark. Interrogative plus negative, question word, had subject not verb third form plus object plus question mark. So to understand these formulas well, let's see the examples. The first example is वह पार्टी में जाने से पहले ही थक चुकी थी। As I already told कि पास्ट परफेक्ट टेंस में आपके दो एक्शंस रहते हैं, टू एक्शंस हैपन टुगेदर, दो एक साथ हुए थे, बट फर्स्ट एक्शन, वन एक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड बिफोर द अनदर वन, लेकिन जो एक्शन है वो एक पहले कंप्लीट हुआ और एक बाद में हुआ। सो जो हमारा पहले कंप्लीट होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, और जो बाद में कंप्लीट होता है दैट विल कम अंडर सिंपल पास्ट टेंस। यहाँ पर क्या हुआ, वह पार्टी में जाने से पहले ही थक चुकी थी। सो पहले वो थक गई थी, सो जो थकने वाला है हमारा वो हमारा किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट में आएगा। दैट्स वाई वी हैव रिटन शी हैड गॉट टायर्ड। और बाद में क्या हुआ, बाद में वो पार्टी में गई। सो बिफोर शी वेंट टू द पार्टी, वेंट इज द सेकेंड फॉर्म, तो इसलिए हमने उसको सिंपल पास्ट में रखा। तो हमारा सेंटेंस बन गया शी हैड गॉट टायर्ड बिफोर शी वेंट टू द पार्टी। नेक्स्ट इज राकेश अपने दांतों की जांच कराने दांतों के डॉक्टर के पास नहीं गया था। सो राकेश इज द सब्जेक्ट, राकेश निगेटिव है बिकॉज नहीं दिया है। हैड नॉट, जाना मीन्स गो, गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। राकेश हैड नॉट गॉन टू द डेंटिस्ट, डेंटिस्ट मीन्स होता है दांतों के डॉक्टर, फॉर द चेकअप ऑफ हिज टीथ। राकेश अपने दांतों की जांच कराने दांतों के डॉक्टर के पास नहीं गया था। राकेश हैड नॉट गॉन टू द डेंटिस्ट फॉर द चेकअप ऑफ हिज टीथ। नेक्स्ट इज क्या संकेतों में खराबी होने के कारण विमान समय से नहीं उड़ा था। सो क्या एंड नहीं, दैट मीन्स इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, सो इट विल बी हैड द एरोप्लेन। सब्जेक्ट क्या है, द एरोप्लेन, एरोप्लेन नहीं उड़ा था। नॉट फ्लोन, फ्लाई मीन्स होता है उड़ना, एंड फ्लोन इज द थर्ड फॉर्म। नॉट फ्लोन ऑन टाइम, क्यों, ड्यू टू बैड सिग्नल्स, खराब संकेतों के कारण। सो हैड द एरोप्लेन नॉट फ्लोन ऑन टाइम, ऑन द टाइम, ड्यू टू बैड सिग्नल्स। फोर्थ सेंटेंसेस, क्या तुम मसूरी घूमने की योजना बना चुके थे। सो क्या, इट मीन्स ये आपका इंट्रोगेटिव है, हैड यू प्लान टू विजिट मसूरी। सो दीज ऑल सेंटेंसेस वर रिलेटेड टू past tense only. I have explained the formulas and sentences. I hope you all have understood well. Still if any confusion is there, so you can ask in the Zoom meeting, that will be from 11 a.m. to 11:30 a.m. or you can ask in the on the WhatsApp also, and that is 11:30 to 12 p.m. So till then, stay home, stay safe. Bye bye everyone.